Ramesh Puduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I am 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. Adim hanghingstra manobikatar jodi ami keu hoi, shojon harane shoshane toder chita ami tulboi. We will see the end of you. Do not wonder. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We are going to come back and we are going to see the end of you. महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है और ये इस सरकार का एक और तानाशाही किस्म का फैसला है जो शर्मनाक है और एक बकवास किस्म का फैसला है. केंद्र की इस मोदी शाह की सरकार ने अभी तक जितने भी फैसले विपक्ष के खिलाफ लिए हैं उनसे डर और बेशर्मी की गंध आती है. राज्य दर राज्य सीबीआई और ईडी की रेड के अलावा देश की संसद में जिस तरह के फैसले लिए गए हैं वो केंद्र के डर को साफ तौर पर सबके सामने रख देता है. कैसे वो विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहा है. राहुल गांधी, राघव चड्ढा और संजय सिंह के खिलाफ आए फैसलों के बाद अब महुआ मोइत्रा के निष्कासन का जो ये फैसला है ये ऐसे ही नहीं लिया गया है. दरअसल ये सारे फैसले इन लोगों की आवाज को दबाने की मकसद से लिए गए हैं क्योंकि ये लोग बोलते अच्छा है, पॉपुलर भी हैं और इसके साथ साथ खास तौर पर बात यह है कि ये संसद के अंदर इस सरकार की और नरेंद्र मोदी की सबसे कमजोर कड़ी गौतम अडानी पर जमकर निशाना साधते हैं. महुआ मोइत्रा ने भी संसद में अडानी के खिलाफ बोला. हाँ, ये अब आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ये पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे हैं, लेकिन जितनी जल्दी उन्हें निष्कासित किया गया है, जितनी जल्दी उनके निष्कासन का फैसला लिया गया है, उतना फोकस उनके पूछे गए सवालों पर एक्शन लेने में किया गया होता तो शायद हमें यह कहना ही ना पड़ता कि ये डरी हुई सरकार है जो विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है. The complainant says, I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. And there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. महुआ मोइत्रा 2019 में बंगाल से लोकसभा में जीतकर पहुंची. वो टीएमसी की सांसद हैं, लेकिन जिस रेज के साथ और जिस सफाई के साथ वो अपनी बातें संसद में रखती हैं उससे वो पॉपुलर हुई और फिर सरकार की आंख में खटकने लगी. The Manipur issue is mired in silence and in the government's whataboutery and false equivalences. I will point these out as best as I can. The treasury bunches have made vitriolic comments on why only Manipur. What about the instances of rape and murder in Rajasthan, in Chhattisgarh, in West Bengal? We in turn have felt compelled to ask, what about the violence in Haryana? The issue is that two communities today in Manipur have been pitted against each other in an atmosphere of civil war, of ethnic violence that has rarely been seen in India in the past few decades. Sir, Mr. Chairperson, sir, are you going to do your job? And please ask the honourable gentleman to sit down. Are you going to do your job, sir, and ask this honourable gentleman to sit down? I'll tell the House. Honourable Prime Minister, this man, Mr. Ray, has topi panaud you. He travels with you on your delegations. He meets heads of states on visits to India. He portrays that India is the Prime Minister and the Prime Minister is him. He makes it appear to the world that he is the remote control behind the Prime Minister, and by obliging him, will be obliging the Prime Minister. अब ये सवाल जो महुआ ने संसद में पूछे हैं ये किसी से पैसे लेकर पूछे हैं या फिर किसी से पैसे लेकर नहीं पूछे हैं, इस पर जांच भी चल रही है. लेकिन जांच के बीच में ही एकदम से रिपोर्ट आने के बाद कुछ ही घंटों के अंदर उन्हें निष्कासित कर दिया गया. ये बहुत ही शर्मनाक है. उन्हें अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया. लेकिन समझ से परे एक सवाल बहुत बड़ा ये है
कि संसद में सवाल पूछना ज़्यादा गलत है या फिर संसद में सबके सामने सरेआम किसी को गाली देना, किसी को अपशब्द कहना, या फिर देश के जो जाने माने पहलवान हैं उनका किसी पर छेड़छाड़ और यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाना। आपके लिए क्या ज़्यादा गलत है, क्या ज़्यादा गंभीर है और किस गलती में और किस गंभीर आरोप के तहत किसी सांसद का निष्कासन कर देना चाहिए? महुआ मोइत्रा जैसी पढ़ी लिखी सांसद का हमारी संसद में होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने पैसे लिए हैं अपने सवालों के एवज में या फिर नहीं लिए हैं, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन इस तरह से तेज़ी लाना उनके निष्कासन में एक बहुत ही गलत चीज़ सरकार के द्वारा की गई है। ये आपको ज़रूर माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको लगता है कि महुआ मोइत्रा की जो निष्कासन है वो कई महीनों में कई तरीक़ों से आपको सही लगता है, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या ज़्यादा गलत है। क्या आपको ये ज़्यादा गलत लगते हैं कि आपको ये ज़्यादा गलत लगते हैं, या फिर आपको ये महिला जो जनता के सवालों को संसद में पूछ रही है, सवाल भी उनके वैलिड रहे हों, पैसे लेकर पूछे हैं या फिर नहीं पूछे हैं, ये एक जांच का विषय है, ये भी चल रही है बातें। महुआ मोइत्रा इस बात से खंडन कर रही हैं, लेकिन सवाल उनके बहुत ही वैलिड रहते थे जो भी वो संसद में उठाया करती थी। वैसे एक दिलचस्प बात 2014 के बाद से हमने अब तक ये देखी है कि हमने आज तक ये नहीं सुना कि किसी बीजेपी के नेता के घर पर सीबीआई या फिर ईडी की रेड पड़ी हो या फिर बीजेपी का कोई नेता जेल गया हो। हमने तो यही सुना है कि मीडिया के माध्यम से यही सुना है कि बीजेपी के सारे नेता पाक साफ हैं। खैर ये तो मजाक की बात है कि बीजेपी के सारे नेता पाक साफ हैं, आप भी जानते ही होंगे, लेकिन सबसे सोचनीय विषय ये है, सबसे गंभीर विषय ये है कि जो बीजेपी है और उसके नेता हैं उनको अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि जनता उनके फैसलों पर किस तरीके से रिएक्ट करेगी, जनता खुश है उनके फैसलों से या फिर खुश नहीं है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो रहा है, क्योंकि देश में इस समय जो है वो धर्म के नाम पर सब मौज ले रहे हैं, सब मौज कर रहे हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आपका महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स पर यह भी बताएं। और आपको ज़्यादा गलत कौन लगता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ये ज़रूर बताएं कि आपको ज़्यादा गलत कौन लगता है, महुआ मोइत्रा लगती हैं या फिर ये दो सांसद जो बीजेपी के सांसद हैं, एक रमेश बिधूड़ी इनका नाम है और एक का नाम है बृजभूषण शरण सिंह। खैर आप इन तीनों नेताओं पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि किसको निष्कासित होना चाहिए था अभी तक संसद से और किसे निष्कासित कर दिया गया है।